Hey viewers, as you know that government has initiated a new scheme, that is Agnipath scheme. So in this video I will talk about the positive and negative sides and the impact on the people as well as in the government. So let's start the video by starting that what it is. So Agnipath scheme is simply that the youth will be will be able to serve the nation for 4 years, and after that they will be retired, and they will get a certificate so that they can get a job in the private sector. So the first question which comes in mind after this scheme, in the mind of youth, that is, what about those things that enrollment list has not come yet, the result of the Indian Air Force exam that we given in the 2020 has not come yet. So the anger in the youth is because of that you can initiate this scheme after the result, after the enrollment of those vacancies. आप आए उसके बाद आपने अचानक से बोल दिया दैट एग्निपथ स्कीम विल इज़ लॉन्च एंड द न्यू वैकेंसीज विल बी अकॉर्डिंग टू डैट. जो एग्ज़ाम कराए, जो एनरोलमेंट लिस्ट थी, नथिंग मैटर्स. जो मेहनत की थी, द फिजिकल, मेडिकल एंड द रिटिन फॉर द आर्मी स्टूडेंट, 3 से 4 साल उन लोगों को लग गए. नथिंग मैटर्स, सब कुछ तबाह. यू विल गेट जॉब, यू विल अब वैकेंसीज किसके अकॉर्डिंग होंगी? अग्निपथ स्कीम एंड वेट फॉर द 4 years. Another thing, government is saying that after this Agnipath scheme, lot of peoples will be unemployed. कई सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा. That's the good thing that you will get the employment. But what is the guarantee that after 4 years, after getting a certificate, those peoples will be able to get job in private sector? One more question is that what is the basis of selecting the 25% people or 25% of those candidates which will become permanent? So and there is also one more question that is related to NCC. जिन्होंने 3 साल मेहनत की in the NCC and after that they were in the hope that when we will give army rally bharti, we will not give the written exam, we will give the physical, medical, then we will be able to enter in it. But what about the NCC, as they have spent 3 years in that, and but होता ये है कि in this Agnipath scheme youth is destructing public places and they are doing these things. But इसमें पिस्ता कौन है? आम आदमी. As you can see, constables, police is controlling those men. अब गवर्नमेंट का क्या है? उन्होंने दे इनिशिएट अ स्कीम, दे डू नॉट थिंक अबाउट द इम्पैक्ट ऑन द यूथ एंड ऑन द पीपल्स, दे जस्ट इनिशिएटेड. और अब इसमें जब पत्थरबाजी होगी, दैट यू कैन सी दे आर डिस्ट्रॉइंग द प्लेसेस, तो उनको कंट्रोल कौन करेगा? एक आम इंसान, दैट इज़ कॉन्स्टेबल एंड पुलिसमैन. वो उधर से पत्थर मारेंगे, ये उधर से पत्थर मारेंगे. द कॉमन पीपल विल इंजर्ड, दे विल गेट द सफरिंग. बट व्हाट अबाउट द गवर्नमेंट? They just get sit in the home making new policies, and policies like, what is the mean of this Agnipath scheme? You are focusing on quantity or quality? You will take thousands of aspirants by that, but do you think that they will have enough courage and determination and be passionate to the nation? They already know we will serve nation for only 4 years and after that we will be retired. तो क्वांटिटी के बजाय क्वालिटी पे फोकस करना चाहिए. एंड वन मोर थिंग दैट इज़, गवर्नमेंट ने ये इनिशिएट किया, बट इट शुड थिंक दैट व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन द यूथ एज वेल एज ऑन द विलेजर्स एंड दोज पर्सन्स हु आर प्रिपेयरिंग बाय द आर्मी रैली भर्ती, और यू कैन से इन द नेवी, एयरफोर्स. सो गवर्नमेंट को पहले सोचना चाहिए दैट क्या इम्पैक्ट होगा और इससे यूथ क्या कर सकता है. That you are not providing new vacancies in other sector, and in the defense you modified by this Agnipath scheme only 4 years service. So what does it show? That you are not developing a nation, you are only modifying the things. You are not creating new jobs in private sector, you are not focusing building infrastructure, making new industries such that the youth can indulge in that, youth can enter in that private company and get employment. So there are lot of things that, लेकिन चीज़ ये है कि यूथ इज़ डिस्ट्रक्टिंग पब्लिक प्लेसेस. अब इसमें
पब्लिक प्लेसेस, पब्लिक प्रॉपर्टी, हमारा ही नुकसान हो रहा है. गवर्नमेंट विल रिपे दीज थिंग्स बाई अस. हम पे टैक्स लगेगा, गवर्नमेंट का क्या है. सो ये जो चीज़ हो रही है आज, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ वीडियोज़ दैट इज ट्रेन्स आर बर्निंग एंड द सिचुएशन बिकम क्रिटिकल नाउ. मैंने देखा वीडियो में कि पुलिसमैन को पीटा जा रहा है, तो उनका दोष क्या है इसमें? दे आर नॉट द कल्प्रिट. पुलिसमैन्स मैन्स एंड द दिस पैरामिलिट्री फोर्सेज आर नॉट गिल्टी ऑफ इट. एक्चुअली गवर्नमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस. गवर्नमेंट को पहले सोचना चाहिए था दैट वाट एवर वी आर लॉन्चिंग वी कैन इनिशिएट आफ्टर 1 to 2 years. Such that we can enroll this list and also जिन्होंने एग्ज़ाम दे दिया है उनको वैकेंसीज प्रोवाइड करके आफ्टर 1 and 2 year they can initiate this. But you can see they do not think about any sides, and this result I think is government is itself responsible for that. Think about those persons who are responsible or who think about to join army and waiting for 3 to 4 years. And still he came to know about that everything has been abolished and now we will enter only for the 4 years. So there is a problem of unemployment, and this leads to the destruction of this public property and places. So these are some things which I think that I am not biased to I am not biased or I am not favoring or against of it, but जो चीज़ तुम लाए हो ना उसके अपोजिट में मीन्स आई एम लिटिल बिट फेवर ऑफ इट. बिकॉज चलो लाए हो ये चीज़ ठीक है, बट यू शुड थिंक अबाउट दैट कि इम्पैक्ट क्या होगा इसका. और इसमें पिस कौन रहा है? आम आदमी, आम इंसान. गवर्नमेंट का कुछ नहीं जाता, हमको ही पे करना पड़ेगा सब कुछ. सो दैट्स आई थिंक दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड दैट आई वॉज थिंकिंग, एंड दीज आर सम थिंग्स विच द यूथ इज थिंकिंग एज itself. I am a defense aspirant, so I think that these are the things that youth is thinking, how we will get the employment if these things will be initiated by the government. Now the question is that कि solution इसका क्या हो सकता है? तो you can see that they are burning the places or trains and everything. तो ये तो solution नहीं होना चाहिए. तो because it is only harming us, the common man. Instead of this, youth can do that. They can file FIR against or file cases against suicidal cases against government, that जितने भी suicides हुए हैं is due only to the government. सुप्रीम कोर्ट में केसेस किए जा सकते हैं. तो इंस्टेड ऑफ वायलेंट प्रोटेस्ट, पीस प्रोटेस्ट शुड बी डन. और पीस प्रोटेस्ट हमने देखा था 15 अप्रैल को दिल्ली वाला, उसमें कुछ नहीं हुआ था. जस्ट ओनली सेड कि रिजल्ट दे देंगे. तो पीस प्रोटेस्ट का भी कोई मतलब नहीं रह जाता, बिकॉज वी हैव सीन, आई हैव सीन इन द मंथ ऑफ अप्रैल नथिंग वाज डन. एंड वायलेंट प्रोटेस्ट भी नहीं होना चाहिए, बट इंस्टेड ऑफ इट सुप्रीम कोर्ट विल हेल्प अस. अगर केसेस किए जाएंगे अगेंस्ट गवर्नमेंट, द पॉलिसी एंड द इनिशिएटिव दैट दे आर डूइंग. सो थैंक यू. कि आप यंग ला रहे हो बट इनसिक्योर ला रहे हो. वो 4 साल तक इनसिक्योर रहेगा, और उसके बाद 4 साल के सिपाही में आप क्या चेक करोगे कि 75% को घर भेजोगे? कौन है वो नायाब 25%? कैसे सेलेक्ट? कोई तरीका नहीं है. भागने में सारे फिट है, फायरिंग में सारे फिट है. पहले कॉलेजेस के बच्चों को तो जॉब मिल नहीं रही है, आप कहोगे सिपाहियों को जॉब मिल जाएगी? क्या कॉर्पोरेट क्या? ये मैं 25-30 साल से सुन रहा हूँ कि हम स्किल करेंगे सोल्जर्स को. हम कई सालों से स्किल कर रहे हैं सोल्जर्स को. कोई कोर्स भी नहीं करना चाहता है, और कोर्स करके कोई जॉब भी नहीं मिलती. 4 साल में 1 साल तो छुट्टी में निकल गया, 6 महीने ट्रेनिंग में निकल गया. आप बच गए 2.5 साल. इस 2.5 साल में ड्यूटी भी देगा, या पुराने सिपाही खड़े रहेंगे ड्यूटी पे, या वो काम भी करेगा, या आप उसको सीधा भेजोगे जा भी अभी कंप्यूटर सीख ले या कुछ. एक सिपाही बनने में 8-10 साल लगते हैं. इनको कैसे, किस रिस्क पे आप इनको एक पोस्ट पे खड़ा कर सकते हो? उनको कहेंगे टूर ऑफ ड्यूटी वाले हैं, ये तो इनका पता नहीं क्या होगा. 75% को कैसे आप कल बोलोगे तू चले जा रोड पे वापस? जॉब देखो नहीं है, ये कहानी है कॉर्पोरेट ले लेगा, फलाना. गवर्नमेंट कोई नहीं लेता है, ना आज तक लिया है. रातों रात कुछ नहीं बदलेगा, नहीं बदला. मैं कहता हूँ इस देश पे शादी होती है उसकी, आज जमीन नहीं देखते हैं. ये बच्चे ओवर एज हो गए जो अभी तक दौड़ रहे थे, भाग रहे थे, ये वो. तो उनका क्या है? उनका तो भविष्य गया अंधकार में, क्योंकि वो इंतजार ही करते रह गए. कर रहे हैं, इनको 10-12 लाख रुपए ले भी लिया, 15-20 लाख भी ले लिया, तो क्या है आज के दिन? बट आई एम श्योर उसका फ्यूचर बन जाएगा. बट कहाँ है जॉब? ऑफिसर्स के लिए जॉब नहीं है, सिपाही